हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, आप लोग का स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 8, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11, चैप्टर नंबर 8, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन द लास्ट लेक्चर we were discussing the eukaryotic cell, and in the eukaryotic cell the topic was cell wall and cell membrane. In this lecture we are going to discuss endomembrane system. So let's discuss endomembrane system. We are going to start endomembrane system. While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया, आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस होंगे, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म गेट डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट. So each of the membrane bound cell organelle, membranous cell organelle is distinct in terms of its function and structure. Many of these are considered together as endomembrane system. So each and every membrane bound cell organelle is distinct and unique in its shape, structure and function, but some are closely correlated with each other in terms of function. Many of these consider and some of these are considered as endomembrane system because their functions are correlated to each other. So some of them are considered together as an endomembrane system. The endomembrane system include this question. This line is important. You may get this type of question that endomembrane system include. So there जो ऑप्शन होंगे उसमें कुछ एक 3-4 आपको ऑप्शन सजेस्ट कर दिए जाएंगे. आपको याद रखना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज कंक्लूडेड ऑफ और कंसीडर्ड इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स and vacuole. These 4 cell organelles together constitute endomembrane system. The endomembrane system include endoplasmic reticulum, ER, Golgi complex, Golgi body, GB, lysosomes and vacuoles. Since the function of mitochondria, chloroplasts, peroxisomes are not coordinated. Functions of mitochondria, chloroplasts, peroxisomes are not coordinated with each other with the above components. These are not considered as part of endomembrane system. So endomembrane system consists of endoplasmic reticulum, Golgi bodies, vacuoles, lysosomes. These 4 cell organelles are the part of endomembrane system. However, mitochondria not considered under endomembrane system. Plastids also not considered under endomembrane system, and ribosomes, peroxisomes, these are not. Mitochondria, chloroplasts, peroxisomes are not considered with the above components: endoplasmic reticulum, Golgi body, vacuoles and lysosomes. They are not considered as parts of endomembrane system. Okay, now first is the endoplasmic reticulum. Electron microscope studies of a eukaryotic cell reveal the presence of network or reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm. जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो ये आपको दिखाएगी नेटवर्क प्रेजेंट है और रेटिकुलम ऑफ टाइनी टुबुलर छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क और रेटिकुलम जाल सा आपको दिखागा स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म में इनका आपको एक जाल सा दिखाई देखने को मिलेगा. So electron microscopic studies of eukaryotic cell reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structure. Presence of network or reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm, जो साइटोप्लाज्म में भरा पड़ा फैला पड़ा, that is called the endoplasmic reticulum, जिसको हम endoplasmic reticulum बोल रहे हैं. फिर से इन लाइनों को देखते हैं. Electron microscopic studies of eukaryotic cell reveal presence of a network. There is a presence of a network or reticulum of network of tiny tubular structure.
tiny tubular structure that are scattered in the cytoplasm. This network or reticulum of tiny tubular structure which are scattered in the cytoplasm is known as endoplasmic reticulum. Hence, endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments. So, due to the presence of this tiny tubular structure, the intracellular space get divided into two distinct compartments, luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal, that is towards the cytoplasm. So intracellular space get divided into two, luminal compartment and extraluminal compartment. Luminal compartment inside endoplasmic reticulum, extraluminal compartment outside endoplasmic reticulum, that tiny tubular structure. The endoplasmic reticulum often show ribosomes attached to their outer surface. ज़्यादातर समय में आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो नेटवर्क बना रहे हैं, उनकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच हैं. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम द आउटर सरफेस अपीयर रफ. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ endoplasmic reticulum. In the absence of ribosomes, they appear smooth, and when ribosomes are not present, their surface appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. Then this endoplasmic reticulum is termed as smooth endoplasmic reticulum. So two types of endoplasmic reticulum are there. Rough endoplasmic reticulum is smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is that on the outer surface of which the ribosomes are attached, and smooth endoplasmic reticulum is that the outer surface is not rough due to the absence of ribosomes. Ribosomes are not present, so outer surface looks smooth and shiny. The rough endoplasmic reticulum is the site of protein synthesis, and smooth endoplasmic reticulum is the site of lipid synthesis. The endoplasmic reticulum often show ribosomes attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosome, they appear smooth, the outer surface appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. So, rough endoplasmic reticulum, you will predominantly find this type of endoplasmic reticulum in the cells that are actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of nucleus. Rough endoplasmic reticulum is in continuation with outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of lipid. In animal cells, lipid like steroidal hormones are synthesized in the smooth endoplasmic reticulum. Now move to the Golgi body. Golgi apparatus or Golgi body. Camillo Golgi was the scientist first observed densely stained reticular structure near the nucleus. Camillo Golgi was the scientist who first observed densely stained reticular structure near the nucleus. These were the later named Golgi body. This structure later named Golgi body after him. उसके श्रद्धांजलि देते हुए, कैमिलो गोल्जी को श्रद्धांजलि देते हुए इन स्ट्रक्चर को, जिसको उसने देखा था कि डेंसली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है नियर द न्यूक्लियस, दिस स्ट्रक्चर वर नेम Golgi bodies after him. They consist of many flat disc-like sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. So Golgi body consists of flat disc-like structure, disc-like sac-like structure or cisternae that measures about 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. Disc-like sac-like structure, cisternae that make the Golgi body. And this cisternae individually the dimensions are 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. These are stacked parallel to each other. ये stacked parallel to, ये एक दूसरे के parallel stack pile formation कर लेंगी या इकट्ठा होती चली जाएंगी. Stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi complex और इनका नंबर फिक्स नहीं है. Varied number of cisternae are present in
Golgi body, Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus. This cisternae are concentrically arranged near the nucleus. This is, say, for example, is the nucleus. So this cisternae are concentrically arranged near the nucleus. Yeah. This is the nuclear membrane nucleus. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis phase or the forming phase, cis phase, forming phase or convex phase. There are two phases of Golgi body, cis, convex or forming, and the another one is concave, trans or maturing. Cis or convex or forming, convex cis phase or forming phase, and concave trans phase or maturing phase, and the concave trans or the maturing phase. The cis and trans phases of organelle are entirely different. So there are two phases, convex cis or forming and concave trans or maturing phase. The cis and trans phases of organelle are entirely different but interconnected, but these phases are interconnected. Say for example, this is the convex cis forming phase and this is the trans maturing phase. The Golgi apparatus principally performs the function of packaging. The function of Golgi apparatus is the main function of the Golgi apparatus is the packaging of material. The Golgi apparatus principally performs the function of packaging material to be delivered either to the intracellular target or to the extracellular target or secreted outside the cell. That material which is get packed by the Golgi body, that material is to be delivered either inside the cell, intracellular target, or the extracellular outside the cell by means of secretion. Material to be packed in the form of vesicles from the endoplasmic reticulum fused with the cis phase. So material that is going to be packed by the Golgi body, that material is produced by the endoplasmic reticulum, and that material which is to be packed in form of vesicles produced by the endoplasmic reticulum, and from the endoplasmic reticulum this material enters inside the Golgi apparatus via its cis phase or convex phase, fused with the cis phase of Golgi body and move towards the maturing phase, trans phase. This explains why Golgi bodies remains in close association with the endoplasmic reticulum. Actually इसमें जो मेन फंक्शन है इसका पैकेजिंग करना है मटेरियल का, मटेरियल जो पैक करना है मटेरियल दे कौन रहा है, मटेरियल दे रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो मटेरियल बनने के बाद एंटर होता है सिस फेज से या कॉन्वेक्स फेज से, गोल्गी बॉडी में एंटर होता है वाया सिस फेज, कॉन्वेक्स फेज और कौन सा फेज, और इट्स सिस फेज, कॉन्वेक्स फेज और फॉर्मिंग फेज, और वो इसमें से मूव होता होता वाया निकल जाएगा बाहर वाया इस कॉनकेव फेज और ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज। तो एंटर हुआ सिस फेज से ऑफ द गोल्गी बॉडी एंड मूव टूवर्ड्स इट्स मैच्योरिंग फेज। दिस एक्सप्लेन, यही रीजन है कि गोल्गी बॉडी एकदम बिल्कुल पास में मिलती है किसके, क्लोजली एसोसिएटेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्योंकि जो मटेरियल उसने पैक करना मटेरियल उसको कौन दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रहा। नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। तो ये प्रोटीन, जो प्रोटीन बनने की साइट क्या है, मशीनरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड व्हेन गेट प्रोटीन गेट सिंथेसाइज्ड इट गेट मॉडिफाइड। तो मॉडिफिकेशन प्रोटीन का कहाँ होगा, गोल्गी बॉडी में होगा। तो गोल्गी बॉडी में कहाँ से आएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगी। एंटर कैसे होगी, इसके सिस कॉन्वेक्स फेज से होगी या ट्रांसफॉर्मिंग फेज से होगी, और आफ्टर मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ये डिलीवर होगी कहाँ से निकलेगी, इसके कॉन्वेक्स कॉनकेव फेज, ट्रांस फेज से और मैच्योरिंग फेज से बाहर निकलेगी आफ्टर पैकेजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग। द गोल्गी apparatus इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। भाई लिपिड सिंथेसिस हुआ, लिपिड सिंथेसिस कहाँ हुआ, लिपिड सिंथेसिस हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और जब ये लिपिड और प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट मॉइटी अटैच कर दी जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन, ग्लाइकोसिलेशन।
तो ये लिपिड बदल जाएगा ग्लाइकोलिपिड में और ये प्रोटीन बदल जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन में। तो इसका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्जन कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी कर रहा है। तो गोल्जी बॉडी इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। बात समझ में आ गई भैया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ क्या बना? प्रोटीन। और वो प्रोटीन एंटर हो गई कैसे? इसके कॉन्वेक्स फेज से फॉर्मिंग फेज से कॉन्वेक्स इस फेज से एंटर हो गई। तो ये प्रोटीन में जब आपने ग्लूकोज जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, तो ये हो गई ग्लाइकोप्रोटीन। और लिपिड जो बना था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था, वो लिपिड जब एंटर हुआ इसके सिस फेज से, कॉन्वेक्स सिस फेज से और फॉर्मिंग फेज से, तो उसका ग्लाइकोसिलेशन अंदर अंदर मूव होता रहेगा और कॉन्केव फेज से मैच्योरिंग फेज से बाहर निकल आएगा, कॉन्केव फेज ट्रांस फेज से बाहर निकल आएगा जब उसमें लिपिड जुड़ गया। अगर लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुड़ गई, ग्लाइकोलिपिड हो गया। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रही है? मेनली गोल्जी बॉडी में हो रही है। ठीक है जी। तो गोल्जी बॉडी के दो काम आपको समझ में आए। पहला एक तो पैकेजिंग कर रहा है और दूसरा पैकेजिंग के अलावा ये क्या कर रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस कर रहा है। लेकिन एक्रोसोम यही बनाता है। ह्यूमन स्पर्म में जो हेड पे टोपी है एक्रोसोम, गोल्जी बॉडी की बनी है। और गोल्जी बॉडी साइट है किसका? मेम्ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन का। जो डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन है उनका ट्रांसफॉर्मेशन यही करता है। तो मेनली इसका काम है पैकेजिंग। गोल्जी बॉडी, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज द पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर। So these are the few lines about the Golgi body. Move to the next, lysosome and vacuole, and that finishes with your endomembrane system. Lysosomes are membrane bound vesicle structure. Lysosomes are single membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. So lysosomes are formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. In the formation of lysosomes, endoplasmic reticulum and Golgi body both taking part. Endoplasmic reticulum provides the material that has to be packed by Golgi body. So material that is packed, the material is provided by endoplasmic reticulum and packaging is done by Golgi body. So a vesicle is formed that is known as lysosome. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme. So isolated vesicles, these are the गुब्बारा। जैसे होली में गुब्बारा आप मार देते हो किसी के, तो इन गुब्बारों में, इन वेसिकल्स में क्या भरा हुआ है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलेजेस, lipases are those enzymes which causes the disintegration, digestion of लिपिड का ब्रेक डाउन करेंगे। प्रोटियोजेस एक्ट ओवर द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कॉजेज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज, these are the basically amylase, lipase, protease, amylase, carbohydrates, optimally active at the acidic pH. So the optimum pH 4.5 to 5.5, that is the acidic value. So this is called as acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid. And in case ये lysosome get burst in the cell cytoplasm, this will cause the lysis of the cell organelles or cell components. That is why these are called as suicidal bag. Lysosomes are also called as suicidal bag because it can cause the lysis of cell itself. If they get burst in the cell, they will cause the lysis of cell. So these are lysosomes are also called as suicidal bag. इनको हम लोग suicidal bag भी बोलते हैं. तो lysosomes बने किससे हैं? Joint action आपके गोल्जी बॉडी से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये एंजाइम बनाए और उसकी पैकेजिंग किसने कर दी? गोल्जी बॉडी ने कर दी. तो इन दोनों के एक्शन से बने वेसिकल्स दैट आर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, हाइड्रोलिटिक वेसिकल्स, जिनके अंदर एंजाइम्स हैं. एंजाइम्स बेसिकली क्या है? प्रोटीन कहाँ बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, वैक्यूल, द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, द लास्ट वन, वैक्यूल. The vacuole is the membrane bound space
वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस मिल रही है। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है और इसमें मिल क्या रहा है? वाटर मिल रहा है, सैप मिल रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अदर मटेरियल मिल रहे हैं दैट आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। दिस इज द इम्पोर्टेंट वैक्यूल ऑफ membrane of a vacuole is called as tonoplast. This is important. So the vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. In plant cells the vacuole can occupy up to 90% of the volume. जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, in a case of plant cell a central large vacuole is present. That vacuole may be large enough that occupies the 90% volume of the cell. So, a 90% volume of a cell can be occupied by the vacuole in case of plant cell. और वैक्यूल को, ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सैप मिल रहा है, और वो मटेरियल मिल रहे हैं जो प्लांट के लिए हेल्पफुल नहीं है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो टोनोप्लास्ट ऐसी मेम्ब्रेन है जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ों को ला रही है, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर। सो यहाँ पे जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट ला रही है, क्योंकि भाई कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए हार्मफुल है, सेल के लिए हार्मफुल है, तो भले उसका कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में कम हो, ये उसको फिर भी अंदर लाएगी, पैसा खर्च करके लाएगी। पैसा क्या है? करेंसी ऑफ सेल, एटीपी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके अंदर ले आएगी, क्योंकि बाद में ये उसने बाहर डिस्कार्ड कर देना है मटेरियल। हेंस देयर कंसंट्रेशन वो जो मटेरियल है जो हार्मफुल है सेल के लिए, उसको ले आया अंदर, सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अमीबा में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिल रही है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम कर रहा है ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। तो कह रहा है कई सारी सेल्स में, जैसा कि आप देखेंगे प्रोटिस्टन में, फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाती है बाय इनगल्फिंग फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया प्रोटिस्टा ने, और उसकी वजह से वो फूड पार्टिकल जब मेम्ब्रेन बाउंड हो गया तो उसको हम लोग वैक्यूल कह सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये आपको अमीबा के केस में मिल रहा है, और अमीबा में ये आपको हेल्प कर रहा है, अमीबा को हेल्प कर रहा है ऑस्मोरेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में। प्रोटिस्टा में आपको फूड वैक्यूल मिल सकती है, जो कि बन गई है फूड वैक्यूल बन जाती है जब फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाता है सेल के द्वारा। सो दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स दैट टेक पार्ट इन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 सेल ऑर्गेनिल्स की हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग उधर चलें, अपनी स्लाइड पे देखें, इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा आपको दे सकता हूँ मैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये 4 है, ये बात हो गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई बात पूरी आपकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्फीनोइडल। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय लॉस ऑफ राइबोसोम। एक चीज़ ये याद रखिएगा, बहुत बच्चे ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ध्यान से सुन लो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइज हो रही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे, ऐसा आप लोग मिथ बना लेते हो। ऐसा नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय मींस ऑफ डिस्कार्डिंग राइबोसोम फ्रॉम इट्स सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज हो सकती है। कब? जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से राइबोसोम्स हटा दिए जाएं या हट जाएं, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हो सकता है, लेकिन स्मूथ से रफ नहीं बनती। क्लियर? तो एक चीज़ ये ध्यान में रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बात है। फंक्शंस इसके पढ़ा के आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, पूछे नहीं जाते। स्मूथ और रफ में डिफरेंस तो ये मैं बताऊँगा नहीं, इसको आप स्क्रीन कैप्चर कर लो, मैं इसको रिकॉर्ड करके और खुद ही पढ़ लो। मैं नहीं चाहता इससे मैं आपको कंफ्यूज करूं, क्योंकि पिछले 5 साल से इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आया नहीं है।
आएगा नहीं आगे भी, लेकिन स्लाइड में दिया है, अगर आप चाहो तो इसको कर लो। गोल्जी बॉडी पे आइए। तो पैकेजिंग और स्टोरेज तो इसका मेन फंक्शन है ही है। अलग अलग फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, पैकेजिंग, स्टोरेज। उसके अलावा ग्लाइकोसिलेशन, ये मैंने आपको बताया, लिपिड और प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन कर देता। उसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन, एक्रोजोम का आपको जिक्र किया था। गोल्जी बॉडी फॉर्म, गोल्जी बॉडी बनाता है, गोल्जी बॉडी फॉर्म एक्रोजोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपको बता ही दिया था। गम का सिक्रेशन छोड़िए, हटाइए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बताया था जब उधर पढ़ा रहा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, ए टाइप की मेम्ब्रेन का बी में, बी टाइप की मेम्ब्रेन का ए में ट्रांसफॉर्मेशन करता। लाइजोजोम, ये अलग से जब बात हुई हम लोगों ने लाइजोजोम का फॉर्मेशन समझा, तब ये पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम में दोनों का रोल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मटेरियल बनाया, गोल्जी बॉडी ने उसकी पैकेजिंग कर दी, लाइजोजोम तैयार हो गया। तो ये आपने पढ़ लिए लाइजोजोम्स। लाइजोजोम्स को देखिए, एक लाइन यहाँ से लिख लीजिए, डिस्कवर किया था बेल्जियन साइंटिस्ट ने, क्रिश्चियन डेड्यू। ये इसकी एक लाइन ये लिख लीजिए वहीं पे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। लाइजोजोम सुसाइडल बैग कहलाते हैं, ये चीज़ मैंने डिस्कस कर दी थी आपको। सुसाइडल बैग कहलाते हैं, अगर फट जाएगा सेल के अंदर तो सेल की लिसिस कर देगा, तो सुसाइड। लाइजोजोम्स देखिए, दे शो डिफरेंट स्टेजेस इन अ सेल, डिफरेंट मार्फोलॉजिकल टाइप एंड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, नोन एज प्लियोमॉर्फिज्म। आपसे पूछा जाता है, भाई नीट में तो नहीं पूछा गया, एम्स या डीपीएमटी में पूछा गया था, कौन सा सेल ऑर्गेनिल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स दैट शो प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म मीन्स दैट प्रेजेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेल, मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में मिलना, दैट इज नोन एज प्लियोमॉर्फिज्म। एंड लाइजोजोम शो प्लियोमॉर्फिज्म, बस ये लाइन आप लिख लो, लाइजोजोम शो प्लियोमॉर्फिज्म। अपने यहाँ पे आप एनसीईआरटी की आपकी लाइन है। प्राइमरी लाइजोजोम, सेकेंडरी लाइजोजोम, रेसिडुअल बॉडीज, ऑटोफेजिक वैक्यूल, ये इसके 4 फॉर्म है अलग अलग जो मिलते हैं। 4 फॉर्म में मिलता है, प्राइमरी लाइजोजोम में मिलता है, सेकेंडरी लाइजोजोम में मिलता है। अब मैं इनको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, अगर आपके बहुत ही ज़्यादा भैया हो कि मैंने तो बिल्कुल 700 में 700 लाने, तो आप इसका पढ़ लेना, मेरा पॉज करके खुद ही। रेसिडुअल बॉडी, ऑटोफेजिक वैक्यूल, मैं इसको आप लोग को नहीं चाहता कि डिस्ट्रैक्ट करूँ, पूछा नहीं जाता। फंक्शन लाइजोजोम्स का क्या है, भाई डाइजेशन करने में हेल्प करेगा, डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मटीरियल। वैक्यूल की भी बात हो गई, वैक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है इन द साइटोप्लाज्म दैट कंटेन ऑल द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट आर नॉट यूजफुल फॉर सेल, और उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन लगवा लीजिए। वाई गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल एंड लाइजोसोम्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उनको हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर्स आर डिस्टिंक्ट, फंक्शंस आर डिस्टिंक्ट, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। आंसर है फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए हम लोग उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के तौर पे कंसीडर करते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, बिल्कुल ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ग्लाइकोसोम्स करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोलिसिस, नो। तो आंसर क्या है, आंसर है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये हमारा ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप इज डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवलप किससे डिराइव्ड होता है, न्यूक्लियर एनवलप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव्ड होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द रूटिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन, कौन है, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी उनको रूट प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है
either intracellular or extracellular. Scientists who observed densely stained reticular structure near the nucleus, कैमिलो गोल्जी एंड द कैमिलो गोल्जी ने 1988 में इसको ऑब्जर्व किया था और उन्हीं के नाम पे इसको गोल्जी बॉडी नाम दिया गया. इंपॉर्टेंट साइट वॉज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. क्या है हमारा गोल्जी बॉडी. द सेल ऑर्गेनिल इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन. कौन है भैया, बता चुके हैं आपको. ग्लाइकोसिलेशन प्रोटीन का कौन करता है? सेल ऑर्गेनिल. राइबोसोम नहीं, पेरोक्सिसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं. ग्लाइकोसिलेशन प्रोटीन का करता है गोल्जी बॉडी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस. मटीरियल पैकिंग करता है, सिक्रीशन करता है. मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, ए टाइप की मेम्ब्रेन को बी टाइप में बदलता है. साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑप्शन नंबर डी. द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय. कौन रेगुलेट कर रहा है उसको? वैक्यूल रेगुलेट करती है. वैक्यूल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल. कंटेन्स वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक. बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, बिल्कुल ठीक. कंटेंट्स फॉर्म्स सेल सैप एंड मेंटेन्स टर्गर प्रेशर. इट्स कंटेंट फॉर्म सेल सैप, मेंटेन टर्गर प्रेशर, ठीक. ऑल ऑफ दिस यू शुड गो विद ऑल ऑफ दिस. Which is the following statement is correct? Amoeba contractile vacuole is important for excretion and regulation. ठीक. Many cell size in proteins food vacuoles are formed by engulfing the food particles. ठीक. Vacuole is always a small size in all cells of plant. Cells small size होती. It may be large enough to occupy 90% volume. So this is not the correct. Option A and B both are correct. So now move to the next cell organelle, mitochondria. Okay. So I think that much is enough for today lecture. We will discuss the mitochondria and rest of the cell organelle in the next lecture. मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद. इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए. मेरे TPP वगैरह को डाउनलोड कर लीजिए. मेरे ऐप पे आ जाइए सुमो बायोलॉजी पे. सुमो बायोलॉजी मेरा ऐप है, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस पेपर, DPP मिल जाएगा, टेस्ट पेपर मिल जाएगा. तो इसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए. मेरा लेक्चर आपको समझ में आया हो तो लाइक बटन हिट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बने रहिए मोंगा के साथ सुमो बायोलॉजी पे. अपनी प्रिपरेशन को मानते रहिए. तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.